new listener, so I want to introduce Vivekananda Samiti. Vivekananda Samiti is a student body under Community Welfare Cell, Student Gymkhana, IIT Kanpur. The activities of Vivekananda Samiti can be classified as the application of the philosophy of Swami Vivekananda in today's world. Throughout the year, we organize various workshops, lecture series, Sanskrit classes, spiritual retreats, and health camps, eye camps for the underprivileged. Today, our session name is Personality Development, a Key to Success in Life. Personality development, perhaps it's the most emphasized phrase in an engineer's life or in a technical student's life, because you know that personality development is the key which will give us a better placement. But personality development has many interesting influencing role in our life. N.R. Narayana Murthy, the founder of Infosys, he was actually alumni of our institute, told that a ship is safest in the harbor, but that's not where it's supposed to be. The same thing for our life also. The true potential of a human can be judged in adverse situation. Swami Vivekananda also told, the more I have been defeated, the more my energies had found expression. But how we can cultivate these habits? We can cultivate these habits of managing extreme situations of life. We can cultivate this to happy in every situation of life by personality development. And in today's session, we will learn how we can develop our personality. But before starting the formal session, I would request Professor P.K. Jain sir to introduce our speaker, and after that we have a session on a flute recital by Ganesh ji from Shantikunj. Then we will directly go to our session. I request Professor P.K. Jain sir to introduce our speaker. Thank you. We are fortunate to have today with us Reverend Dr. O.P. Sharma as a speaker. He is a former Joint Director, Health and Medical Council, UP Government, and is a member Board of Governors, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. Dr. O.P. Sharma is also a senior member of the Working Committee, Shantikunj Haridwar. He is also a committee member of Naturopathy Department, the University, member of Moral Physical Education, Madhyamik Shiksha Parishad, Allahabad, lifetime member, Regional Indian Medical Service Committee. He has received the honors, many honors, such as Guru Ratna, Bharat, Bharati Dwarka Alankrit, and he's also received special honor as Rajya Ayurvedic Sammelan Uttar Pradesh Dwarka Alankrit. Propagating thoughts of Pandit Shri Ram Sharma Acharya ji and Vandanya Mata ji, based on scientific spirituality by lectures and social media for the last 41 years in various reputed education institutions like IITs, IIMs, corporate houses in India and abroad, including USA, Canada, Australia, France, South Africa, Sweden, Denmark, etc. and permanent residing in Shantikunj for 33 years after taking voluntary retirement 9 years early by choice. Dr. Thank you, sir. And one announcement is there. We have sent a mail to all of students community regarding the volunteers at Vivekananda Samiti. Those who are interested, you can fill the Google form and you can contact us. And our Facebook and YouTube link are given here. And this total lecture series will be uploaded in YouTube within a couple of weeks. Now we will start our session by flute recital by Ganesh ji from Shantikunj, Haridwar. Please welcome Ganesh ji. संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम। रागी जो सुनाए रागी, रोगी को मिले आराम। कल से आज तक श्री डॉक्टर साहब के मुँह से परमात्मा की बनाई हुई इस मानव जीवन की काया के बारे में बताया जा रहा है। बहुत सी मेडिकल साइंस में भी, एलोपैथिक साइंस में भी,
हेमोपैथिक साइंस में भी और आयुर्वेद में भी मनुष्य को बीमारियों से ठीक करने के लिए दवाएं दी जाती हैं। लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्मनाद। उस पुस्तक में लिखा है कि संगीत की तरंगों के माध्यम से भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। आइए आपके बीच में आज हम बांसुरी की धुन बजाएंगे, जिससे आपको अच्छा लगेगा और आप दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे करके घुटने पर रख के कमर सीध करके बैठ जाएं। हम ओमकार का उच्चारण करेंगे, उसके बाद आप आँख बंद कर लेंगे और बांसुरी की जो धुन बजेगी, शब्द का प्रभाव कैसे होता है श्रद्धेय डॉक्टर साहब आज आपको बताएंगे उस साइंस के बारे में। आप उसको प्रैक्टिकल के रूप में आप सुनेंगे। शांति कुंज में रोज 6 से 6:15 बजे तक यही ब्रह्मनाद बांसुरी की धुन बजती है, जिसमें लोग बैठ करके बहुत आनंद प्राप्त करते हैं। दोनों हथेली आपस में रगड़े, अपने चेहरे पे लगाए, आंखें खोले। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवस्व बहनों, देवतुल भाइयों, प्रोफेसर जैन साहब, प्रोफेसर शुक्ला जी, विवेकानंद समिति के सभी हमारे देवतुल भाइयों, आप लोग ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वास्तव में सेवा का कार्य है जो पर्सनालिटी डेवलप करने का एक विशेष पार्ट प्ले करता है। ये
वेदमूर्तपुनिष्ठ आचार्य जी, वंदनीय माता जी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार के मिशन को बनाया है, जो इसमें सूक्ष्म शरीर से हमारे आपके बीच में विराजमान है। ये उसका मेन गेट है, ये एरियल व्यू है, ये प्रखर प्रज्ञा और सरल श्रद्धा। जब आप शांति को जाएंगे तो यहीं पर प्रखर प्रज्ञा मीन्स प्योर विजडम, यहीं पर पूज्य गुरुदेव की अस्थियाँ रखी हुई हैं। 2 जून 90 को पूज्य गुरुदेव ने अपनी शरीर छोड़ा था और यहीं उनको अग्नि दी गई थी। और 19 सितंबर 1994 को ठीक पूर्णिमा के दिन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड था वो, वंदनीय माता ने भी शरीर छोड़ा था, उनको वहीं अग्नि दी गई। और सजल श्रद्धा में सिंपल डिवोशन, श्रद्धा का मतलब श्रेष्ठ विचारों के लिए, श्रेष्ठ भावनाओं के लिए, श्रेष्ठ क्रियाकलापों के लिए अपने मन में लगाव का पैदा हो जाना, इसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा और विवेक, विजडम एंड डिवोशन, जब दोनों फैक्टर आ जाते हैं, दिस इक्वल टू डेडिकेशन। कोई व्यक्ति जब आगे बढ़ता है उसमें यही 2 फैक्टर्स काम करते हैं, और ये दोनों फैक्टर निकल कर के आते हैं हमारे आपके राइट और लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन से। इसी को तुलसीदास जी ने जब पूरी रामायण लिख लिया तब उन्होंने भगवान राम से पूछा, मन में ही पूछा कि भगवान ये कौन विश्वास करेगा कि आपके पास कोई भी राजा नहीं था, कोई सेना नहीं थी, और आपने सोने की लंका रावण को समाप्त कर दिया। तब भगवान राम कहते हैं उनके अंदर में कि बेटा 2 लाइन ये लिख देना तुम, ये भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्वमीश्वरम। भवानी और शंकर, शिव और पार्वती की उपासना हम शरीर के रूप में नहीं, श्रद्धा और विश्वास के रूप में करते हैं। ये गुण हैं ये, और जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण होंगे बस वही समझ पाएगा कि हाँ, कैसे परमात्मा का वो गुण जो कबीरदास जी ने कहा है, साहब से सब होत है और बंदे से कछुनाएँ, राई सो पर्वत करे और पर्वत राई माए। इसको वही समझ सकता है जिसके बुद्धि के अंदर ये 2 गुण पैदा हो जाएंगे, श्रद्धा और विश्वास। हमारी ये इंडियन फिलॉसफी की और वेदों की यही तो खास बात है। हमारे यहाँ जो दर्शन ऋषियों ने दिया है उसमें दोनों चीज़ें एक साथ हैं, विवेक भी है और श्रद्धा भी है। और जितने दर्शन हैं उसमें कहीं तो आपको विवेक मिलेगा, श्रद्धा नहीं मिलेगी, श्रद्धा मिलेगा तो विवेक नहीं मिलेगा, तो आदमी सेटिस्फाई नहीं होता है, और दोनों के मिलने से संतोष हो जाता है और फिर कदम आगे बढ़ जाता है। ये वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता यजुर्वेद का मंत्र है। ये हम सब मिलकर के राष्ट्र को जागृत और जीवंत बनाए रखेंगे। ये राष्ट्र क्या है? ये भगवान की बनाई हुई एक वाटिका है। ये राष्ट्र है, वो निराकार सत्ता है। वो हम राष्ट्र की नाव में बैठ करके सतत आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अगर राष्ट्र गिर गया तो हम गिर गए, हम गिर गए तो राष्ट्र गिर गया। हम आप उसमें घुले मिले हुए हैं। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम राष्ट्र के नैतिक उत्थान के लिए, उसके सामाजिक विकास के लिए, उसके पारिवारिक विकास के सतत प्रयास करते रहें और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये जब आप तीर्थ में आएंगे, लिखा हुआ भटका हुआ देवता, ये वेदांत फिलॉसफी है। लोग कहते हैं देवता भी भटक जाता है। हाँ, देवता कौन है? हमारी आपकी शरीर ही जीवन देवता है, जीवंत देवता है। जितनी मूर्तियां हैं वो तो मूर्ति है ना, कलाकार ने बना रखी है, उसमें प्राण तो है ही नहीं। प्राण तो डाला गया है उसके अंदर, प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से। वो केवल हमको आपको प्रेरणा देती हैं, ऐसा करिए। करेगा कौन? लिविंग पर्सन उसको करेगा। तो हमारे आपके अंदर देने वाली क्या भटका हुआ हमारा आपका मन भटक गया है। जो देवता है, माने व मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो, जो बंधन मोक्ष को दिला रहा वही तो देने वाला, वही तो देवता है। जो हमको सक्सेस दे रहा है, हमारा मन दे रहा है, हमारा संकल्प हमको सक्सेस करा रहा है, वो भटक गया तो सक्सेस कहाँ से मिलेगी?
बुद्धि हमको रास्ता दिखाती है, बुद्धि भटक गई। जिसको राइट डिसीजन देना चाहिए वो रॉन्ग डिसीजन दे रही हो और नीचे गिर रहे हैं। जिस आत्मा के माध्यम से हमको अच्छी प्रेरणा अंदर से मिलनी चाहिए, सेवा सद्भावना की, उसने बोलना बंद कर दिया, या दूसरे शब्दों में हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, अनसुनी कर दे रहे हैं, और सब रिजल्ट क्या है? हम भटक गए हैं। भटकने का मतलब क्या है? हम कष्ट में हैं, हम दुखी हैं, हम डिससेटिस्फाइड हैं, और अपने को कहते रहते हैं कि ये जीवन क्यों मिल गया जिसमें नाना प्रकार की परेशानियां हैं। कारण केवल एक कि हमने न अपनी शक्ति को पहचाना, न समझा, न बढ़ाया, इसलिए परेशान हो रहे हैं। पर्सनैलिटी जब डेवलप करती है तो हम और आप अपनी शक्तियों को पहचानने लगते हैं। इसके लिए 5 शीशे वहाँ लगे हुए हैं। पहले शीशे में लिखा हुआ सो अहम, जो परमात्मा है सो मैं हूँ। स्यो अहम, वो बड़ा कल्याणकारी है, मैं भी कल्याणकारी हूँ। सच्चिदानंदो अहम, परमात्मा कैसा? सत्य चित आनंद के स्वरूप में, वही आनंद मेरे अंदर है। उसी आनंद की तलाश के लिए हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, सुख की प्राप्ति के लिए, क्योंकि वो हम उसके बेटे हैं, वो क्वालिटी हमारे अंदर है। अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म का तो निर्माण, हमारी आत्मा ही निर्माण करने वाली है। एवरी मोटिवेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम द रियल सेल्फ। अयम आत्मा ब्रह्म, लेकिन मेरा रियल स्वरूप क्या है? तत्वमसि इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट। हम एलिमेंट के रूप में हैं। दैट इज कॉल्ड द मेटाफिजिकल बॉडी। आई एम नॉट द फिजिकल बॉडी, आई एम बियॉन्ड दैट। ये मेरा स्वरूप है। ये दिस इज द वेदांत फिलॉसफी जो स्वामी विवेकानंद जी ने सारी दुनिया को दिया है। वही 5 शीशे वहाँ पर लगे हुए हैं। आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपने को देखिए कि क्या हमारे ये देवता हमारा साथ देते हैं या हमको गलत राय दे करके नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं, जो असफलता का कारण बन जाता है। गायत्री महामंत्र जिसमें हम आप इसका जप करते हैं, क्या मांगते हैं उसे हम आप? धियो यो न प्रचोदयात। This is the privilege we have got. No animal can pray from the Almighty. They are working in the guidance of the nature, but we are free. We have got a liberty to decide our own track, but animals do not have. अब हम राइट डिसीजन लें, ये कौन बताएगा हमको? तो हम किससे प्रेरणा मांगते हैं, किससे प्रार्थना करते हैं? हम सूर्य से प्रार्थना करते हैं जिसने हमको जीवन दिया है। उसी से प्रार्थना करते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः, हे परमात्मा आप कण कण में व्याप्त हैं, तीनों लोकों में व्याप्त हैं, आप ऑमनीप्रेजेंट, ऑमनीसिएंट हैं। आप तत् सवितुर्वरेण्यम, आपकी सविता शक्ति को हम वर्ण करते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्ग मतलब वो गॉड, यू आर प्योर, प्यूरिफाई माई माइंड, यू आर कलेक्शन ऑफ वर्चूज एंड फिल अप माई माइंड विद द वर्चूज। आई एम एम्ब्रेसिंग यू एंड डायरेक्ट आवर मेंटल इंटेलेक्ट ऑन द राइट पाथ। कितनी बड़ी प्रार्थना हम करते हैं उसी सविता शक्ति के माध्यम से। प्रार्थना में इतनी बड़ी शक्ति है कि हम आप किसी की सहायता कर नहीं सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी लिखते हैं, सहायता कोई किसी की केवल 3 तरीके से करता है। आप उसको सलाह दे सकते हैं, आप राय दे सकते हैं, एक। दूसरा, कोई बुक आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, भाई लोगों ने ऐसा कहा है, यू कैन रीड इट, यू कैन फॉलो इट एंड यू कैन गो अहेड। लेकिन करना और न करना उसके ऊपर है, वेदर एक्सेप्ट्स और नॉट। लेकिन प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर से भावनाएं निकलती हैं, और वो भावनाएं आपकी भावना को टच कर जाती है, और फिर आप बाउंड हो जाते हैं उस पर चलने के लिए। आपको भी आश्चर्य होगा, हमारा मन मोड़ कैसे गया, किसने मोड़ दिया? अरे किसी बड़ी सत्ता ने मोड़ दिया। आपने देखा नहीं, माँ की जब प्रार्थना करती है बच्चे के लिए सच्चे हृदय से, तो क्या हो जाता है? आई हैव सीन ए पेशेंट, इतना सीरियस उसका बच्चा था, ही वॉज ऑन डेथ बेड। वो गांव की महिला थी, वो उसके समझ में तो आ नहीं रहा था, लेकिन वो जोर से चिल्लाई और उसने अपने हृदय से पुकारा बिना किसी मंत्र के कि उसकी बीमारी हमको आप दे दो,
और उसको बचा दो। आपका आश्चर्य होगा, वो स्वयं तो बीमार हो गई और बच्चा बच गया। वो ये क्या था? ये कोई मेडिसिन यहाँ नहीं काम करने वाली है। यहाँ हृदय की पुकार है, यहाँ हृदय की भावनाएं हैं। जो नेचर को चला रही है सत्ता, उस सत्ता को उसने टच कर दिया, जो उसके हृदय में बैठी हुई है, इम्यूनिटी को रेज कर दिया। वो तो बच्चा तो बच गया, और वो बहुत मुश्किल से बचाई गई। प्रार्थना इतनी भारी शक्ति है, प्रार्थना के माध्यम से इस दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है। हम आप गायत्री मन से प्रार्थना करते हैं, और करके क्या मिलता हमको? आपको 4 क्वालिटीज़ हमारे आपके मन में डेवलप करती हैं: अवेयरनेस, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड करेज। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। इसको दूसरी भाषा में प्रज्ञा कहते हैं। इसी को प्रज्ञा कहते हैं। दिस इज द आउटकम दैट कम्स फ्रॉम द रिसाइटेशन ऑफ द गायत्री मंत्र। When we recite Gayatri Mantra, we get 3 things in our mind. One is the devotion, श्रद्धा, श्रेष्ठ कार्यों के लिए लगाव पैदा होता है। Second is the wisdom, and this is the wisdom. क्या हम खाना समझदारी से खा रहे हैं? क्या हमारी भाषा समझदारी की है? It is a very wide word. क्या हम जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, it is wise enough to help me and to others? क्या हम आगे की प्लान कर रहे हैं वो समझदारी से कर रहे हैं? हम इसको समझदारी, आज कहाँ समझदारी है किसके पास? अगर समझदारी होती तो शायद व्यक्ति आज इतना परेशान ना होता जितना समाज है। ये समझदारी क्या है? ये रूट है। ये ईमानदारी क्या है? जो हम अपने लिए अच्छा समझते हैं वो हम दूसरे के लिए करें, ऑनेस्ट टू द हार्ट। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो तो हमको आपको सम्मान करना पड़ेगा, इसको ईमानदारी कहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए तो हमको आपकी बात को सुनना और समझना पड़ेगा। लेकिन हम अपनी तो सुनाना चाहते हैं, आपकी कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। आज समझदारी अगर आई, ईमानदारी खुद पैदा हो जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बेटा समझदारी तो जड़ है, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी ये पत्ते हैं। जिम्मेदारी क्या है? हम आप इंसान हैं, हमारे आप के ऊपर 3 तरीके की जिम्मेदारियां हैं। व्यक्तिगत अपनी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी क्या है? शरीर को स्वस्थ रखना और दिमाग को बैलेंस बनाए रखना, संतुलित दिमाग रखना, न तो यूफोरिया में आना और न डिप्रेशन में जाना। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी। कोई जानवर कभी अपने दिमाग को बैलेंस में नहीं रख सकता हो। आप किसी जानवर को देखिए, उसके मूड के खिलाफ हुआ, अभी आपको काट खाएगा। लेकिन मनुष्य अगर वो बैलेंस न बना पाए तो उसमें इसमें अंतर क्या है? उस जानवर में, हमारे आपके अंदर। इसीलिए ऋषि कहते हैं कि सबसे बड़ी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है शरीर की स्वास्थ्य की रक्षा करना और अपने दिमाग के बैलेंस को बनाए रखना। दूसरी जिम्मेदारी क्या है? परिवार में, परिवार के लोगों के अंदर संस्कार डाल देना। अपने भाई में, बहन में, माता पिता में उनको एक राष्ट्र का अच्छा नागरिक बना देना, एक अच्छा इंसान बना देना संस्कारों के माध्यम से। इस काम को जब पशु नहीं कर सकता, संस्कारों से व्यक्ति का निर्माण होता है। कौन देगा इसको? हमको आपको देना है। आज भी संस्कार देना ख़त्म हो गया। अब समाज की स्थिति देख लीजिए, अब क्या हो रही है। आज सारी दुनिया इसी संस्कार के पीछे चलना शुरू हो गई है। अब तीसरी जिम्मेदारी क्या है? समाज की जिम्मेदारी। हमको, हमारे आप पर समाज का कर्ज लदा हुआ है। वी हैव गॉट डेब्ट फ्रॉम सोसाइटी। माता पिता ने मदद किया है, हमारे गुरुजनों ने मदद किया है, भाई बहन ने हमारी हेल्प किया है, कितने लोगों ने हमारी हेल्प किया है, तो हम आप डेवलप कर रहे हैं। तो क्या हमारी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? अगर दर्जी कपड़ा न सिले होता तो आज हम आप सब आदमी दिखाई पड़ते हैं। अगर बार बार ये बाल न बनाए होता तो क्या स्थिति हो गई उसकी? क्या कोई जिम्मेदारी नहीं उसके लिए हमारी आपकी, समाज के लिए? नहीं, जिम्मेदारी है। कोई व्यक्ति अगर हमारे आपके लिए कुछ मदद करता है, ये कर्ज हमारे आपके ऊपर हो गया, क्या करना चाहिए? हम उसको सहायता करनी चाहिए। क्या सहायता करेंगे? पैसा तो नहीं दे सकते, लेकिन वेद क्या कहता है, परम पूज्य गुरुदेव जी क्या कह रहे हैं? हमको उसके भावनाओं का विकास करना चाहिए, उसके भावनाओं का पोषण करना चाहिए, उसको ज्ञान देना चाहिए। और मुसीबत में है, हम जो कुछ उसके लिए कर सकते हैं, कुछ नहीं तो प्रार्थना तो कर सकते हैं। इससे क्या होगा? कर्ज उतरने से अपने मन को शांति मिलती है।
संतोष मिलता है। और जिसके ऊपर कर्ज लदा रहता है बड़ा दुखी रहता है, क्योंकि अंतरात्मा नहीं चाहती कि किसी का डेप्ट हमारे ऊपर हो, फ्री चाहती अपने को करना। कितनी माइन्यूट साइकोलॉजी की ऋषियों ने देखा है, और जिसको आज परम पूज्य गुरुदेव ने दिया, ये इसी गायत्री मंत्र के द्वारा ये मिलता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने की। और अंत में क्या है जो हमारी विवेकानंद समिति कर रही है, श्रेष्ठ बातों को अपने अंदर धारण करना और श्रेष्ठ विचार को सारी दुनिया को दे देना, क्योंकि श्रेष्ठता का सामुच्य ही परमात्मा है। कलेक्शन ऑफ द वर्च्यू इज द गॉड, वो कोई व्यक्ति नहीं है। वो जहाँ कहीं भी दिव्यता दिखाई पड़ रही है वहीं परमात्मा मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए गीता में कहते हैं, वृक्षों में पीपल मैं हूँ, पशुओं में गऊ मैं हूँ, क्योंकि दिव्यता उसके अंदर ज़्यादा है, दैट्स वाई। और अंत में वो क्या कहते हैं, जितने मंत्र हैं उसमें गायत्री मंत्र मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 37वें अध्याय के 10वें श्लोक में, गायत्री छंद सामहम, मैं स्वयं उस छंद के रूप में विराजमान हूँ, कण कण में मैं व्याप्त हूँ। आज ये जिसको कहते हैं जिम्मेदारी का निर्वाह और करेज का मतलब साहस, श्रेष्ठ काम करने के लिए अंदर में सत्साहस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि हम इस कार्य को करेंगे, हम स्वयं आगे बढ़ेंगे और दूसरों को बढ़ाएंगे। ये हिम्मत कहाँ से आएगी? ये बस चारों वेदों की माता इसी गायत्री मंत्र के माध्यम से आएगी, जिसके प्रमाण हैं परम पूज्य आचार्य जी, जो इसमें सारी पृथ्वी पर मौजूद हैं, प्रकाश के रूप में विराजमान हैं। शांति कुंज हरिद्वार उनकी काया है, काया गुरुदेव की क्या है? शांति कुंज। और उनका इसमें एग्जिस्टेंस कहाँ है? अखंड दीपक, द सिंबल ऑफ द सन। क्यों? गायत्री मंत्र का देवता सूर्य है, वो सूर्य में व्याप्त हो गए हैं, इसीलिए उनको 26 वर्ष छोड़े हो गया इस शरीर को। और ये मिशन कितने रात दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ता ही चला जा रहा है। ये कितनों को प्रेरणा मिलती चली जा रही है, आश्चर्य लगता है देख करके। क्या प्रेरणा मिल रही है? स्वयं आगे बढ़ो, दूसरों को आगे बढ़ाओ, स्वयं इंसान बनो, इंसानियत को पैदा करो, स्वयं अपने को अच्छा बनाओ, दूसरों के लिए करो, पवित्र बनो, उदार बनो। ये प्रेरणा मिल रही है, ये आपको ही मिल रही है। अगर न मिली होती तो क्यों आते आप? जस्ट इमेजिन। और आप देखना, आप तो इंजन का काम कर रहे हैं। हम बच्चों से निवेदन करेंगे और प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनका सहयोग करते जाएं और बच्चों की एक टीम बनाते जाइए। अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि सब मिलाकर लगभग 7000 बच्चे यहाँ पर हैं। आप अगर एक महीने में अगर 10-10 बच्चों को भी अगर बातचीत करें और अच्छी बात से जोड़ते जाएं, तो डिविनिटी सबके अंदर है, वो आपके होंगे, आप उनके सीनियर हैं, आपको धन्यवाद भी देंगे, उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। पर्सनैलिटी के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, थॉट, कैरेक्टर एंड बिहेवियर। शरीर तो अलग है, वो शरीर तो स्वस्थ होनी चाहिए। व्यक्तित्व में 2 चीज़ें आती हैं, पर्सन एंड क्वालिटी। एज सच हाउ आर यू लुकिंग, आपकी चाल कैसी है, आपकी शरीर कैसी है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपका फेशियल आउटलुक कैसा, कैसे आप मिलते जुलते हैं किसी से। जैसा हम विचार करते हैं वैसा ही हम काम करते हैं, वैसा वातावरण बन जाता है और वही सुख दुख का कारण हो जाता है। अगर हमारे मन में सम्मान की भावना है तो जब आपसे मिलेंगे तो हम आपका सम्मान करेंगे और अपने को पोलाइट बनाए रखेंगे, क्योंकि मन में है ऐसा। शरीर वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा हमारे मन में है। इसलिए पर्सनैलिटी के जो मेन कंपोनेंट है, दैट इज अ थॉट, इसको चिंतन कहते हैं। कैरेक्टर, इसको गुण कहते हैं। और बिहेवियर, इसको स्वभाव कहते हैं। व्यवहार का चिंतन, चरित्र और व्यवहार, बस तीनों को रिफाइन कर दिया जाए, पर्सनैलिटी इंप्रूव कर गई। और अगर पर्सनैलिटी बन गई फिर क्या कहना है? जहाँ कहीं जाएंगे कॉम्पिटिट करेंगे, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो नौकरी चाकरी हो, कहीं भी हो। इन्हीं तीनों को हम सबको रिफाइन करना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? इसके 8 हैं रिफाइन करने के लिए। तो उसको स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये फिजिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है ये, क्योंकि ये साइकी की क्वालिटी है, ये चेतना का गुण है ये। तो चेतना से ही इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि कोई पेशेंट आता है, अगर उसको टाइफाइड है
तो उनको काउंसलिंग थोड़ी करेंगे, उनकी एंटी टाइफाइड मेडिसिन देंगे तभी तो कीटाणु मरेंगे वो। नहीं अगर कोई साइकिक न्यूरोसिस है तो साइकोसिस है तब उनसे काउंसलिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, उनकी मन की बात को निकालेंगे। और अगर सेटिस्फाई हो गए तो ठीक है, केमिकल चेंज हो गया विचारों से तो ठीक है, और नहीं हुआ तो कोई मेडिसिन दे करके केमिकल को चेंज कर देंगे और विचार बदल जाएगा। क्योंकि एवरी थॉट फॉलोज ए केमिकल एंड एवरी केमिकल फॉलोज ए थॉट। अगर पॉजिटिव थॉट आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका केमिकल पॉजिटिव हो जाएगा और आप नॉर्मल हो जाएंगे। नहीं एक्सेप्ट किया आपने तो मेडिसिन इज़ देयर। मेडिसिन कुछ करती थोड़ी है, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को चेंज कर देती है, बस सोचने की प्रक्रिया बदल जाती है। वही आदमी डिप्रेशन में था वही प्रसन्न हो जाता है, कहता नहीं सब ठीक है। अभी तो आप डिप्रेशन थे, अभी आप ठीक क्यों करें भाई? आपका केमिकल चेंज हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर चेंज हो गया, आप प्रसन्न हो गए। हम आप उसी केमिकल्स के बने हुए हैं, उसी को हम आप कहते हैं कि इतना आशीर्वाद मिल रहा है, ये हो रहा है, अब कैसे इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हाउ टू रेक्टिफाई एंड इम्प्रूव बाय एन स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग टू अचीव द गोल ऑफ लाइफ। हमको पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। आज व्यक्ति पूर्ण स्वस्थी तो नहीं है, अगर फिजिकल है तो मेंटल नहीं है, मेंटल है तो फिजिकल नहीं है, वो है तो स्पिरिचुअल नहीं है, बस इसी में वो परेशान रहता है और नाना प्रकार के कष्ट उठाता है। WHO is giving the definition physical, mental, social and spiritual well-being, and this spiritual word is added in the Geneva Conference in November 1958. इसके पहले स्पिरिचुअल वर्ड कभी WHO ने एक्सेप्ट नहीं किया था। क्यों एक्सेप्ट किया? उन्होंने देखा आप कभी फिट हो ही नहीं सकते बिना स्पिरिचुअल के। क्यों? अभी नील बोर ने क्या कहा स्पिरिट के बारे में, लोगों ने क्या कहा, साइंटिस्ट क्या कहता है, फिलोसफर्स क्या कहते हैं, सोशलिस्ट क्या कहते हैं। एक ही चीज़ को कई एंगल से देखा जाता है। एंगल का मतलब दर्शन क्या कह रहा है, फिलॉसफी क्या कहती है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, साइंस क्या कहती है, उसका आउटकम क्या बता रहा है। तब इतने एंगल से देखने के बाद तब वो बात आदमी एक्सेप्ट करता है, हाँ भाई ये ऐसा है। WHO क्या कह रहा है? हेल्थ इज परचेजेबल, वी कैन परचेज द हेल्थ। तो कैसे परचेज करेंगे? क्या रुपया देकर खरीद सकते हैं उसको? नहीं, हेल्थ रुपये से नहीं खरीदी जा सकती। अगर हमको स्वस्थ रहना है फिजिकली तो हमको आधे घंटे का समय निकाल कर खेलना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, आसन करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट हमको लेनी पड़ेगी, सीजनल फ्रूट्स हमको लेने पड़ेंगे। ये क्या है? ये हमने समय को दे कर के ख़रीदा है, लगा दिया समय को, हमने पैसा देकर सामान खरीद रहे हैं और समय देकर हमने इस्तेमाल कर लिया। हम अपने मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए हमको स्वाध्याय करना पड़ेगा, हमको ध्यान करना पड़ेगा, इसके लिए समय निकालना पड़ेगा। नहीं कर सकते उसको। लोग क्या कहते हैं, समय नहीं है हमारे पास। वही 24 घंटे का समय भगवान ने सबको दिया है, लेकिन वो समय आपका अस्त व्यस्त है, वो इनडिसिप्लिन है। वो अगर वही रेगुलेट कर लिया जाए, जिसके उदाहरण स्वयं परम पूज्य गुरुदेव हैं। उनके गुरुदेव जब 1926 में आए तो उन्होंने क्या कहा गुरुदेव जी से? उनके गुरुदेव ने, बेटा 24 घंटे का समय तुम्हारे पास है, तुम 4 घंटे तो स्वाध्याय करना, 6 घंटे सोना, 7 घंटे की उपासना करना, 17 घंटे हो गया अभी, 6 4 10 मतलब 6 घंटे सोना, 4 घंटे तुम पढ़ने का प्रयास करना, 7 घंटे की उपासना। 66 माला का जब रोज करना था गुरुदेव को, 3.5 घंटे सुबह, 3.5 घंटे शाम। अभी बचा 7 घंटे, क्या करोगे? 2 घंटे खाना खाना, विश्राम करना, और समय बचा खेलना कूदना। कितना बड़ा 24 घंटे का समय है। लेकिन हम आप कभी समय को बांटते हैं क्या? गपबाजी में इधर उधर बातचीत करके निकल गया। अब निकल गया तो निकल गया, अब हाथ तो आएगा नहीं फिर वो। समय संयम करते जाइए, बात बन जाएगी। You all know about Neil Bohr. What he is saying, just you can read it anywhere. Human consciousness is 2 in 1, both actor and spectator.
हम ही काम भी कर रहे हैं, हम ही देख भी रहे हैं। दैट इज यूनिक थिंग। जानवर में ऐसा नहीं है। पशु कभी समझ नहीं सकता कि मैं क्या हूँ, वो नहीं समझ सकता। वो काम कर रहा है और अपने शरीर को आत्मा समझता है, स्पिरिट। लेकिन हम नीलबोर क्या कह रहे हैं? इट इज़ अ ग्रेट ड्रामा ऑफ द एग्जिस्टेंस। यही तो ग्रेट ड्रामा है। आप जिसमें शवासन करते हैं, कार्ब्स पास्चर में जाते हैं, तो क्या देखते हैं आप देखते हैं अपनी उंगलियों को देख रहे हैं, आप अपने जॉइंट्स को देख रहे हैं, आप काफ मसल्स को देख रहे हैं, आप अपने ब्रेन को देख रहे हैं और अपने माइंड को एनालाइज कर रहे हैं। आप अपने प्लानिंग को एनालाइज कर रहे हैं, वेदर इट इज रॉन्ग और राइट। देन हु इज एनालाइजिंग? Examiner and examinee cannot be one. Both are separate things. Who is the examiner is the spirit, and examinee is the physical body, that is the mind, the intellect, and all circumstances. It cannot be seen by the naked eye, that can be experienced only after a long process, because it is a mental. What is this? Mental exercise. Mental exercise. As we do this, you see, the physical exercise like that, we have to do the mental exercise. How we should do it, how this will be beneficial to us, this I will tell you later on, how as a student you will follow it. Actor 1, it is a physical awareness that we have got it. We are understanding, we are doing the things. And spectator, spiritual awareness we have got it, that I explained to you. What is that? Examinee and examiner cannot be one. That's what he is saying by himself. Now just see your brain. We have got the frontal lobe, the parietal lobe, the occipital lobe, and the last is the cerebellum, and the spinal cord is going down through the brain stem. Now what is this? This is the only frontal lobe, and upper is the prefrontal gyrus, the area of consciousness. Whatever we are evaluating the things, we are evaluating over here, not at the occipital lobe. Occipital lobe is only responsible for the vision purpose, that's all. जितनी पिक्चर्स हमारे आपके रेटिना पर बन रही, इट इज ऑल रिवर्स। हम उल्टे दिखाई पड़ रहे हैं और आपकी उल्टी पिक्चर हमारे रेटिना के ऊपर बन रही है। इसको सही कौन कर रहा है? यही ऑक्सीपिटल लोब कर रहा है। इसको पहचान कौन रहा है? इसको फ्रंटल लोब। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, हाउ इट वर्क्स। ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड इट हैज मोर देन 10 बिलियन न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स क्या हैं? कलेक्शन ऑफ एनर्जी, बायोइलेक्ट्रिक करंट, कलेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड हेल्प्स एंड वर्क्स with the help of chemicals and thoughts. इसी को हमको आपको ठीक रखना पड़ता है। Just see how we have got a developed brain. It is just see the brain of a reptile. So small cerebral cortex. Cerebellum is here and cerebellum is present in our brain also. It is a small brain. Our muscle power is stored in the cerebellum, not anywhere. लोग कहते हैं ना क्या मस्जिद में हमारी पावर है। ये पावर जानते हैं कहाँ से आ रही? ये सेरिबेलम से आ रही है। ये अभी जरा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, अभी हाथ कांपने लगेगा, अभी उठाना मुश्किल हो जाएगा। बॉडी आपकी बहुत स्ट्रांग है, इन पावर कौन दे रहा है? थ्रू स्पाइनल कार्ड, वो हमारा आपका ब्रेन दे रहा है ये। लेकिन क्या गज़ब की बात है कि हम और आप अपने उसी ब्रेन को एंग्जाइटी से और टेंशन से उसको ही तोड़ते रहते हैं हमेशा। जो सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो वही कमज़ोर हो गया सोर्स ऑफ एनर्जी, अब हम करेंगे क्या? परेशान हो जाते हैं। आज पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं? बेटा अपने को गिराना मत, भगवान ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दे करके इतना बड़ा ब्रेन हमको आपको दे रखा है। जस्ट सी द लेफ्ट एंड द राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन it has got a more the gray matter. It is very logic, analytical, very mathematical, and very aristocratic brain, our left side of brain. And right side, it has got more white matter. It is very holistic, very optimistic, and always sees everything
in a whole way, not a single thing, in a whole way. And both are connected with the corpus callosum. It is a bridge where the 50-watt current passes from right to left and left to right. भावना विचारों में और विचारों में भावना में जाता है, और जहाँ हमारी आपकी बायोइलेक्ट्रिक करंट इसकी कम हो गई, थॉट ब्लॉक हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ समय तक आदमी कहता अभी हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड ए थॉट ब्लॉक। तो कैसे आप रिवाइटलाइज करेंगे उसको? आप थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, थोड़ा ग्लूकोज ले लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, और सब्जेक्ट मैटर को भूल जाइए। आप अगेन काम करने लगेगा, चार्ज हो जाएगा और रिवाइटलाइज हो जाएगा ब्रेन, उसका आंसर आपके अंदर से आ जाएगा। यही तो सोर्स है हमारा आपका। हमेशा हमको आपको इस टूल के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो गॉड हैज़ गिफ्टेड टू अस, जो किसी को नहीं दिया उन्होंने। ये कैसे होगा? दिस 4S फार्मूला इज ए मिरेकुलस फार्मूला जो आज परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। इस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, स्पिरिचुअल वेलबीइंग के लिए साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। साधना में इस दो कंपोनेंट इसके हैं, एक तो जप और ध्यान, रिसाइटेशन एंड मेडिटेशन इज कॉल्ड ए साधना। इसी में आता है स्वाध्याय भी, रिसाइटेशन एंड मेडिटेशन। ये चार काम हमको आपको डेली करने हैं। और कितने समय में करना है? 1 घंटे के समय में। 1 घंटे का समय आप निकालेंगे तो 15 मिनट में आपको एज ए स्टूडेंट, हम तो आधे घंटे करते थे हमेशा। वाइल आई वाज इन MBBS इन KGMC, आई यूज्ड टू रिसाइट हाफ एन आवर, मॉर्निंग में, इवनिंग में 20 मिनट्स। उसके बाद फिर हम वार्ड जाते थे, दिमाग हमारा ठीक रहता था, डायग्नोसिस ठीक होती थी, अपने हम सेटिस्फेक्शन फील करते थे, क्योंकि हमारा टूल ठीक है ये। कैसे ठीक होगा भाई? उसको हमको चार्ज करना पड़ेगा ना, उसको पॉजिटिव थाट्स उसको देने पड़ेंगे। क्यों? वो काम ही करता है थाट्स के माध्यम से। सेवा इसकी कौन करेगा? हम ही आपको करना पड़ेगा। यही साधना है। स्वाध्याय का मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड रीडिंग द इंस्पायरिंग बुक्स, इसको स्वाध्याय कहते हैं। जो हम आप बुक्स पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की, वो तो बुकिश नॉलेज है ना, दैट इज फिजिकल नॉलेज। लेकिन जब आप अपने को उठाने के लिए पढ़ते हैं, उसी को स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय के लिए इसी को चिंतन कहते हैं, स्वाध्याय को, दोनों को मिलाकर के चिंतन कहते हैं। इसके लिए बाद में आपको सत्संकल्प का पाठ करवाएंगे, और हम अपने विवेकानंद समिति से बच्चों से प्रार्थना किया, इन बच्चों से, खैर बड़े हो गए हो तो अपने हो गए, निवेदन ही करते हैं कि सबको आप ये बांट देना। 1.5 रुपए की आती है ये। अगर 5 मिनट आप उपासना के बाद इसको पढ़ लीजिएगा, बस क्या होगा, आपका चिंतन इतना पॉजिटिव बना रहेगा, और जो हम आप सोचते हैं वही सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। उसी को चरित्र कहते हैं, उसी को कैरेक्टर कहते हैं। हमारा आपका मन जो इम्पल्स ले रहा है इच्छा के रूप में, वो कहाँ से आ रहा है? हमारे आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, हाइपोथैलेमस से, जहाँ पर सारी क्वालिटीज़ स्टोर हो चुकी हैं। इसीलिए चित्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोर हाउस। स्टोर हाउस कहते हैं उसको। उसी को क्या कहते हैं? चित्त को चित्रगुप्त। ये आध्यात्म की भाषा है, पौराणिक भाषा, चित्रगुप्त। गुप्त में चित्र बन रहा है। और आपने मंदिर भी देखा होगा, चित्रगुप्त का मंदिर बना हुआ है, कि जो हम आप सोचते हैं, जो हम आप बोलते हैं, और दूसरी भाषा में कहें तो उसको शॉर्ट हैंड कहते हैं। उसका इम्प्रेशन हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर पड़ता चला जा रहा है, और जब इन्वायरमेंट आता है तो टेप रिकॉर्डर की तरीके से वही इंप्रेशंस काम करने लगते हैं, और वही बातें याद आने लगती हैं, और आदमी वैसे बिहेव करने लगता है। इसीलिए इसमें किसी की विटनेस की ज़रूरत नहीं है। विटनेस अपने आप में है, वो जो कुछ हम आप कर रहे हैं। स्वाध्याय की बात कर रहे हैं आपसे, हम कैसे बदलेंगे। संयम का मतलब आगे आगे सेल्फ कंट्रोल कैसे करेंगे चारों पर। और सेवा का मतलब अपने शरीर की सेवा, अपने मन की सेवा और समाज की सेवा। आज जो विवेकानंद समिति ये कर रही है, ये कितना अच्छा काम आप कर रहे हैं कि अगर आपने भाई की सेवा नहीं करेंगे, बहन की सेवा नहीं करेंगे, समाज को नहीं उठाएंगे, राष्ट्र को नहीं उठाएंगे, तो फिर अधूरे रहेंगे कि नहीं रहेंगे आप? सक्सेस कभी नहीं मिलने वाली है। परमात्मा कभी नहीं खुश होने वाला है। पूजा करने से परमात्मा खुश नहीं होता है। कैसे खुश होगा? आप मालिक हैं,
और आपका मकान जिसने अच्छा बनाया है, आप उससे खुश होंगे कि नहीं होंगे? भगवान ने वाटिका बनाया है, जो इंसान इस भगवान की बनाई हुई वाटिका को सुंदर बनाने का प्रयास करता है, वह परमात्मा उसी से प्रसन्न होता है। चापलूसी करने वाले से नहीं, गुणगान करने वाले से नहीं। प्रेयर क्या है? गुणगान करना है, आप बड़े अच्छे हैं, आप ऐसे वैसे हैं, बड़ी अच्छी बात है। भाई आपकी अच्छाई अपने अंदर हम धारण करके अगर हमने आपकी बनाई हुई चीज़ को अच्छा बनाया ही नहीं तो क्या मतलब उससे हुआ? सेवा बहुत बड़ी बात है, लेकिन सेवा तभी की जा सकती है जब हमने अपने को कॉम्पिटेंट वैसा बना लिया है। ओनली देन वी कैन डू इट। ये सारे प्रोसीजर इसीलिए हैं कि हम इतने कॉम्पिटेंट हो जाएं, इतने स्ट्रांग हो जाएं कि हम अच्छी सेवा कर सकें अपनी और समाज की, और अंदर बैठे हुए भगवान को प्रसन्न कर सकें और श्रेष्ठ प्रेरणाओं के रूप में उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। भगवान के एक ही तो आशीर्वाद है, ही इज सिटिंग इनसाइड। हमको आपको राइट मोटिवेशन अंदर से मिलता रहेगा बस। भगवान कुछ नहीं करता है, मोटिवेट कर देता है। उसको आप सुनते हैं, एक्ट अपॉन एंड वी गेट द रिजल्ट्स। बस ये सारा का सारा जो स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट है वो एक ही काम में मदद करता है, हम डिवाइन मैसेज को सुने और आगे बढ़ें। इसी को आशीर्वाद कहते हैं। मेडिटेशन इसकी नाम को आपको करना है। मेडिटेशन इज लैटिन वर्ड, इट हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड मेडिटरी, दैट मीन्स द हीलिंग प्रोसेस। व्हेन वी मेडिटेट और फोकस आवर माइंड, बॉडी एंड सोल, दे आर ऑल हील्ड अप, नॉर्मल होते चले जाते हैं। इसको क्या कहा गया है मेडिटेशन को? इट इज सिंपली द ब्रिंगिंग आवर टोटल अवेयरनेस on any picture, subject, aim, and it controls the wandering mind, and that becomes the seat of attraction and the different powers of the mind. क्या मतलब मेडिटेशन का हुआ? कैसे करेंगे आप? आज त्राटक हमने आपसे वहाँ करवाया था नहीं? अपने मन के अंदर आप किसी सब्जेक्ट को आपने बिठा लिया, किसी फार्मूला को आपने रख लिया और उसी फार्मूला के ऊपर आपने पूरे माइंड को फोकस कर दिया। अब क्या हो गया? हमारा वही माइंड दैट हैज़ बिकम द सीट ऑफ अट्रैक्शन। इतना मैग्नेटिक पावर इसकी बढ़ गई, कॉस्मॉस के अंदर एनवायरनमेंट में सारी पिक्चर एंड थॉट्स फ्लो कर रहे हैं, गुड और बैड। हमारा आपका माइंड क्या है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्सल माइंड। इस यूनिवर्सल माइंड से हमारा माइंड उसको खींच लेता है, हमको जवाब मिल जाता है उसका। अब रेस तो आ रही हैं, लेकिन गर्मी कहाँ लग रही? अगर आपने कन्वर्जन ग्लास लगा दिया तो आप फोकस कर दिया तो कागज़ जल गया कि नहीं जल गया? सनरेज आर देयर, नॉट हैविंग सो मच इफेक्ट, बट इफ कन्वर्जन ग्लास यू हैव पुट इट, उसने बर्न कर दिया। क्यों? कन्वर्ट छोड़ गए और क्या हो गया? यही माइंड में होता है। हमने अपने सारे विचारों को एक जगह पर लगा दिया, सीट ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मैग्नेट इसकी बढ़ गया, सारे विचार खींच कर चले आए, अच्छे या बुरे, आगे बढ़ गए। तो ध्यान इज़ ए कॉमन वर्ड। आपने कभी देखा पिक पॉकेटर कहाँ ध्यान करता है? जेब काटने वाला, उसका मन कहाँ लगा है? हमारे आपकी जेब के ऊपर। और जैसे ही इधर उधर दिमाग हुआ, निकल गया, पता ही नहीं चला। ये चमत्कार और किसी का नहीं है, ये चमत्कार मन की एकाग्रता की है केवल। आपने छोटी सी बच्चियों को देखा है तार के ऊपर चलते हुए? अगर उनसे आप पूछें क्या कहते हैं बच्चियाँ? हमने अपने मन को किसी तार के ऊपर लगा रखा है, मन गिर गए। ध्यान ही ऐसी चीज़ है जो हमको आपको आगे सफल बनाती हुई चली जाती है। और मन को एकाग्र करने के बहुत से तरीके हैं, जिसकी चर्चा भी आपसे हम कर देंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करना। अगर आपका मन एकाग्र न होता तो आप IIT में सेलेक्ट क्यों होते भाई? आप आगे, मन तो एकाग्र हो ही रहा है। लेकिन मन को एकाग्र करने का सबसे सरल तरीका है, आप अपने मन को प्रेजेंट में रखिए बस, न पास्ट में न फ्यूचर में। अगर आप खाना खा रहे हैं, केवल खाने की बात सोचिए। खाते समय आप दुनिया की बात मत करिए। आप नहीं, मन आपका भाग रहा है इस समय। आप जिसमें पढ़ रहे हैं तो उसकी बात सोचिए। खेलते समय और बातें क्यों करते हैं फिर? अगर आप ये सिंपल चीज़ें प्रैक्टिस करते हुए चले जाते हैं तो धीरे 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 मन प्रेजेंट में रहना सीख जाता है। नहीं तो आप देखते नहीं, लोग खाना खाते हैं और क्या से क्या करते रहते हैं। खैर, उस पर नहीं जाते। मन को ध्यान में करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। हमको किसी की बुराई नहीं देखनी चाहिए। बुराई देखेंगे आप, मन आपका कभी रुकेगा नहीं।
वही याद करेगा। ये तो बड़े ख़राब आदमी, उधर तो ध्यान कर रहे हैं, उधर उनकी खराबी याद आने लगेगी आपको। हमेशा प्रसन्न रहने की आदत डालिए, इंस्पायरिंग बुक्स को पढ़ना चाहिए और हेल्पिंग एटीट्यूड रखना चाहिए और मौन रहना चाहिए एटलीस्ट फॉर 1 आवर। व्हाट इज़ मौन? इट इज़ एन इनर साइलेंस। बाहर जब आप नहीं बोलते इसको आउटर साइलेंस कहते हैं, लेकिन दुनिया भर की बातें मन में सोच रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, केवल उंगली हिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इससे अच्छा बोल देते तो मन तो हल्का हो जाता है। हमने कितने लोगों को देखा है बेचारे बोल ही नहीं रहे हैं बस, और सब सोच रहे हैं और कहते हैं कि मैं तो मौन हूँ। अरे अब मौन कहाँ है भाई, आप चुप हैं केवल, बस बोल नहीं रहे बस, आपका मन तो भाग ही रहा है। तो मौन का मतलब आप अपने मन के अंदर एक सब्जेक्ट को रख लीजिए, उसी के बारे में सोचते रहिए। ओम क्या है, मैं क्या हूँ, मेरा एम क्या है, या गायत्री मंत्र भावार्थ है जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, बस इसी के बारे में आप विचार कर रहे हैं। अरे वो कोई चेतन सत्ता है जो कण कण में व्याप्त है, जो दुखों को दूर करने वाली है, जो आनंद को देने वाली है, जो प्राणों की आधार है। अब इसी विचार को हम सोच रहे हैं। कब सोचेंगे इसको आप? जब आप सुबह सोकर उठते हैं। उसके बाद आगे क्या करें हम आपको बता देंगे। स्नान करते तक आप बस एक बात के ऊपर अपने मन में बिठा लीजिए, किसी पॉजिटिव बात को उसी में अपने मन को लगाए रखिए, बाहर की बातों को मत आने दीजिए। इसको इनर साइलेंस कहते हैं। जितने महामानव स्पीच पेपर हुए हैं, इंक्लूडिंग फ्रॉम महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद, परम पूज्य गुरुदेव, सब मौन हैं। 1 घंटे मौन, एक सब्जेक्ट को। जितने वैज्ञानिक बड़े हुए हैं, इतना एग्जाम्पल आपको टाइम नहीं हमारे पास, वो सब मौन हैं। वो तब उनके अंदर की शक्ति अंदर की जगी है। और जितना आप बोलते जाएंगे शक्ति आपकी ख़त्म हो जाएगी, उतना आप अंदर की बात को समझ न पाएंगे, न सोच पाएंगे, न कर पाएंगे। ध्यान और जप, मेडिटेशन, किसका ध्यान करेंगे? राइजिंग सन का करना चाहिए। आज हमने जो आपको कैंडल जलाकर कराया था, हम आप सबसे चाहेंगे, समिति के लोगों से और प्रोफेसर साहबान से, कि आप ऐसे ही कभी एक क्लास लीजिएगा, दीपक जलवाइएगा और त्राटक करवाइएगा फॉर द 2 मिनट्स। दिस विल हेल्प यू। कि आँख खोल करके उसको देखना किरणों को, फिर आँख को बंद कर लीजिएगा और कल्पना करिए वो फ्लेम हमारे यहाँ आज्ञा चक्र में मिडिल ऑफ फोरहेड दिखाई पड़ रही है, रेज आ रही। इसको इमेजिनरी प्लानिंग कहते हैं। इमेजिन करिए केवल आप, जैसे भी आप बैठे हैं और आप कल्पना करिए अपने घर की, और पिक्चर आ जाएगी कमरे की। माँ की कल्पना करिए, बहन की कल्पना करिए, अभी माइंड में पिक्चर बन जाएगी माँ की, बहन की। ऐसे आप फ्लेम की कल्पना करिए, आप किरणों की कल्पना करिए कि सूर्य की किरणें आ रही हैं जो हमको जीवन दे रही है, हमारा फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। इसी का नाम है ध्यान। कैसे करेंगे अभी प्रोसीजर आपको बता देंगे। मेडिटेशन ऑन ओम, आप अपने यहाँ पर ओम लिख लीजिए और मन पर ओम पर आप लगाए हुए हैं और जप करते चले जा रहे हैं। मतलब पॉजिटिव ध्यान करना चाहिए, निगेटिव नहीं। फूल का ध्यान नहीं किया जाता क्योंकि फूल डिके हो जाएगा, इसीलिए सूर्य की किरणों का ध्यान किया जाता है। वो जीवन प्रदान कर रही है हमको, आपको। इसको पॉजिटिव ध्यान कहते हैं। और निगेटिव ध्यान करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान तो जैसा हमने आपसे कहा, इज कॉमन वर्ड। कहाँ करेंगे आप? ये चक्र है हमारे आपके शरीर में मिले हुए हैं। आज्ञा चक्र ऊपर है, इट इज़ कैवर्नस प्लेक्सस। हम बहुत डिटेल में नहीं गए इसके, अगर ब्रेन को भी उसका सेक्शन दिखाते वहाँ पर प्लेक्सस है, नर्व्स का प्लेक्सस है, करंट भरी हुई उसमें। बस वही हमको आपको आज्ञा देता है नीचे जाने के लिए थॉट्स को। और जहाँ पर विशुद्धमय चक्र, इस फरिंजियल प्लेक्सस, ये यहाँ पर है। इसीलिए अपने प्राण को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्राणायाम 1 और बंध 2। बंध मतलब दबाना। जब आप सर को, सीलिंग को देख करके नीचे को ले जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? जालंधर बंध कहते हैं संस्कृत की भाषा में। तो जब आप ऊपर ले जाकर सांस को निकालते हुए नीचे ले जाते हैं तो यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी एक्टिवेट हो जाती है, और वही बायोइलेक्ट्रिक करंट थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ पासिंग इन ईच एंड एवरी सेल। चार्ज हो जाते हैं आप, शक्ति बढ़ जाती है। थायराइड ग्लैंड हमारी आपकी यहीं तो है, पैराथायराइड यहीं तो है, इतना तो आपको मालूम है। ये इसका कोई एक्सरसाइज नहीं है। कितने लोग आते हैं, साहब हमको थायराइड जो हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, थायराइड काम कम निकाल रही है। अरे भाई आपको तो फिजियोलॉजिकल है कि, और दूसरे कुछ आप करेंगे ही नहीं, उसकी एक्सरसाइज नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे? उसका सर्कुलेशन कैसे बेटर होगा?
और सर्कुलेशन नहीं होगा तो उसका वर्किंग ठीक नहीं होगा। आसन इसीलिए किया जाता है फॉर बेटर ऑक्सीजनेशन, फॉर बेटर सर्कुलेशन, फॉर बेटर फंक्शनिंग, जिससे हमारे टूल्स ठीक से काम करते रहें बस, और हमारा अचीवमेंट हमको होता रहे। नीचे मणिपुरुषक जो लिखा हुआ नहीं है, इसको कहते हैं सोलर प्लेक्सस। दिस इज सोलर प्लेक्सस। कहाँ पर है ये? नंबर 1 और 3 यहीं पर नाभि के नीचे। अभी आपको दिखाते हैं ये प्लेक्सस हैं क्या। ये कोई कल्पना नहीं है, ये जो ऋषियों ने बताई थी, ये 100% करेक्ट है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हमारा, आपकी बॉडी का ही है। और जब आप ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कोई एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि प्राणायाम ही उसकी एक्सरसाइज है जो हमारे आपके हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करती है। आज आपको हमने 4 प्राणायाम सिखाए थे ना, ये बस वही 4 प्राणायाम आप दूसरों को बताइएगा। अब ये देख रहे हैं आप, ये कैसे सिस्टम काम करता है हमारा, आपका कैसे जिंदा हमारा आप। अब ऊपर से देखिए आप, ब्रेन में सबसे ऊपर देखिए आप, जो पीनियल ग्लैंड हमारे आपके पास है, और जहाँ पर पिट्यूटरी और पीनियल आप देख रहे हैं, ये पीनियल इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ ब्रेन, दैट इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। एंड व्हाट इज ए पीनियल ग्लैंड? जब हम लोग पढ़ते थे उसमें पीनियल ग्लैंड वाज सपोज टू बी वेस्टेज। 67 हमने पास आउट किया KGMC से, उसमें किसी फिजियोलॉजिस्ट को नहीं मालूम था कि पीनियल ग्लैंड क्या करती है। और आज लगभग 40-30 वर्षों से पीनियल ग्लैंड इज द सीट ऑफ द हायर कंसंट्रेशन, हायर कॉन्शियसनेस। इसी को जो हम आप यहाँ पर लगाते हैं ना, ये बिंदी ध्यान करते हैं, इसी को थर्ड आई कहते हैं। पीनियल ग्लैंड इज द थर्ड आई, द आई ऑफ इंट्यूशन। और कहीं थोड़ी इंट्यूशन आ रहा है, ये पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है और एक काम इसका और करती है, मेलेटोनिन रिलीज करती है अंधेरे में, और नींद आ जाती है। नींद क्यों आ रही है? इसी पीनियल के नाते आ रही है। अगर इसका हार्मोन रिलीज भी बंद हो जाए, नींद आएगी नहीं अभी, अंधेरे में ही आएगी। वो प्रकाश होगा तो रिलीज ही नहीं होता उसका, वो काम करती रहती है वो। तो जिस हम आप ध्यान जब करते हैं तो इसी पीनियल और पिट्यूटरी का ध्यान हम आप करते हैं। डायरेक्ट रेज यहीं पर जाती हैं। माइंड क्या है? बायोइलेक्ट्रिक करंट है। उसी मन का हमने फोकस कर दिया यहाँ बीच में, वो डिस्पर्स कर गई सब, और दोनों हमारी आपकी ग्लैंड चार्ज होने लगती हैं और करंट नीचे पास होने लगता है, सभी चार्ज होने लगते हैं धीरे 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 धीरे। नॉट ए 1 आवर, इट इज़ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप 15-15 मिनट का ये प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, फिर आप देखना, बहुत टाइम थोड़ी लगेगा आपको। आप देखना 2-4 महीने के अंदर कि आपके अंदर कितनी पावर अंदर की बढ़ती जाती है, IQ कितना बढ़ता है, SQ कितना बढ़ता है, EQ, आप खुद ही देखेंगे उसको। आप खुद ही कहेंगे भाई पहले से बहुत बेटर हो गए, हमारा जजमेंट ठीक हो गया, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया, अब हम सिचुएशंस को टैकल कर सकते हैं कायदे से। यहाँ ध्यान आप करते हैं, जस्ट यू सी इन द मिडल फोरहेड एंड दैट इज ए पीनियल ग्लैंड, जहाँ वो ब्लिंक कर रहा है। आप करेंगे वहाँ पर त्राटक जो हमने आपसे करवाया था, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट आपके वहाँ जाएगा। ये पिक्चर हमने मेडिसिन से लिया है, सिविल्स मेडिसिन जो हम लोग पढ़ते हैं और जिसे ट्रीटमेंट करते हैं। पहले भी सिविल पढ़ते थे, अब तो लेटेस्ट एडिशन आ गया उसका कि कहाँ पर हमको ध्यान करने से क्या मिलता है जा करके। अब जिसमें हम ध्यान करते हैं उसमें अल्फ़ा रेज और बीटा रेज, अल्फ़ा रेज आना शुरू हो जाती हैं। हमारा का ब्रेन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू आउट कर रहा है, अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, जिसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेव इज़ द अल्फ़ा एंड द बीटा। बीटा क्या है? कितना इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देख रहे हैं, कितना हैब्सर्ड जा रही है बीटा रेज। बीटा रेज दे कम आउट फ्रॉम आवर ब्रेन, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कम आउट फ्रॉम ब्रेन व्हेन वी आर वरीइंग एंड वी आर थिंकिंग एनीथिंग। हम सोच रहे हैं और ज़्यादा तनाव में हैं, बस ब्रेन का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बढ़ जाता है, वेव्स उसकी हैब्सर्ड होने लगती हैं। और इसकी नॉर्मल तो क्या इसकी होती 14 से 20 साइकिल पर सेकेंड, और जब चिंता में आ जाते हैं तो ये साइकिल बढ़कर हो जाए 20 to 30, और जहाँ मोर देन 30 और 35 हुई, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। इट इज़ द ब्रेन विच इज़ कंट्रोलिंग द एंटायर सिस्टम, और ब्रेन खुद नर्वस हो गया, पूरा सिस्टम नर्वस हो गया, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गया, और आदमी क्या कहता है अब हम मर जाएंगे, हृदय डूब रहा हमारा, पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज आपका बढ़ चुका है। आप स्लो डाउन कैसे करेंगे? आप उस चिंता को हटाने का प्रयास करिए।
जैसे आपका मन शांत होगा अल्फा रेज आना शुरू हो जाएंगी और साइकिल क्या हो जाए घट करके 7 to 14 साइकिल पर सेकेंड इन रिदमिक वे। इट इज़ द बेस्ट कंडीशन ऑफ द माइंड। आप शांति कुंज आइएगा ब्रह्मवर्चस्व में, वहाँ हमारी बायो फीडबैक डिवाइस है, इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम जिसमें आपका ब्रेन ट्रेसिंग ली जाएगी। बायो फीडबैक से माइंड को पॉजिटिव चीज़ें जब दी जाएंगी आप देखेंगे अल्फा रेज आना शुरू हो गई। और जहाँ माइंड निगेटिव हुआ बस आप देखिए कैसे बीटा आ रही हैं, अपनी आंख से देख लीजिए आप। इसीलिए हर क्षण अपने माइंड को काम एंड क्वाइट रखने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमारा टूल डिफरेंट सिचुएशंस में हमारी मदद करता रहे और हम सक्सेस पा सकें। बाहर से थोड़ी कुछ होने वाला है। एडवर्स कंडीशन में कौन हमारी मदद करेगा भाई? हमारा आपा ही मदद करेगा। अब वो कौन है? हमारा ब्रेन, द सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस। उसी को ठीक रखना इसी के नाम सेवा है। अब इसका साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, हम आप क्यों करते हैं? 1,10,000 साउंड वाइब्रेशन पर सेकंड पैदा होती है। एक बार गायत्री मंत्र कहने पर प्रूव हो चुका है ये। सॉरी। Iodosphere becomes brighter and attractive, hormonal rate normal, neurotransmitters becomes normal, plexus, the chakras are stimulated by sound vibration and increased electrical current, ESP and the divine vision. ये जितने हमारे सेंटर्स हैं उनकी सब की क्वालिटी अलग है। अब ये तो डिटेल जब कभी आप शांति को जाएंगे या आप गुरुदेव की पुस्तक पढ़िएगा, चक्रों का क्या गुण है, शरीर की पूज गुरुदेव ने तो वैज्ञानिक सीरीज अलग लिखा है ना, वो सो साइंटिफिक कि आप पढ़ कर कोई किताब खोल लीजिए आप, वो पीछे हो जाएगी और गुरुदेव आगे आगे लिख रहे हैं उसमें। ये विज़न उनको कहाँ से आया? इसी जब उनकी बुद्धि सुमेधा मेधा बन गई तो जहाँ साइंस से नहीं पहुँच पाई है वहाँ वो पहुँच चुके हैं। उस बात साइंस तो प्रूव करती रहे उस बात को अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, ऐसा है तो ऐसा है तो ऐसा है। ब्रेन वेव्स अल्फा साइको डायनेमिक चेंजेस क्या होते हैं? LRQ दैट इज लर्निंग, देन रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, ये चेंज होने लगता है। मतलब वही गायत्री मंत्र का जब आपने किया, अच्छे विचारों का आप मन में ले आए तो पहले लर्न होगा और फिर वो रिटेन होगा तो स्वभाव बदल जाएगा, फिर आप रिकॉल करेंगे, सारी अच्छाई अपने अंदर याद आने लगेगी, फिर आप पहचान लेंगे, उसी को फेथ पैदा हो जाएगा, आपको श्रद्धा आपकी बढ़ जाएगी। आपका मन कहेगा भाई हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, ये दैट इज कॉल्ड इनर फेथ, दैट हाउ वी डेवलप इट। ऑटो सजेशन एंड फेथ डेवलप एक्टिविटीज ऑफ द हीलिंग सिस्टम, इम्यून सिस्टम इंक्रीजेस इसी ध्यान के माध्यम से। अगर इम्यून सिस्टम हमारा आपका कम हो जाए, रक्षा की प्रणाली बीमार हो जाएगी। ये जितनी बीमारियां हो रही हैं, देखते हैं ना, सीज़न चेंज हुआ तो राइनाइटिस हो गई, जुकाम हो गया, वाई? इम्यून सिस्टम इज डाउन, यू आर नॉट कोपिंग विद द एटमॉस्फेयर, विद द चेंजिंग ऑफ द सीजन। और अगर हम उसको प्राणायाम से बढ़ा लें तो, पॉजिटिव थॉट से सिस्टम को चेंज कर दें तो कुछ नहीं होने वाला है। आप आइएगा कभी शांति कुंज कॉन्टैक्ट करिएगा आप। कितने हम तो पेशेंट वहाँ 2.5 घंटे में पेशेंट देखते हैं, 8 से 10:30 अपने हॉस्पिटल बैठते हैं, शाम को केवल परामर्श कक्ष में कंसल्टेशन रूम में बैठते हैं, बस पेशेंट नहीं देखते उस वक्त। कितनों की इम्यूनिटी रेज होती चली गई, ठीक होकर चले गए। करेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो फ्री, एक्सेप्ट करें न करें, लेकिन ये 100 श्योर प्रोसेस है। ये इम्यूनिटी को रेस कर दीजिए, बीमारी भाग जाएगी आपकी, नज़र नहीं आई कहीं बीमारी। इम्यूनिटी रेस करने में हम हेल्प कर सकते हैं, बस 100% तो वहाँ भी नहीं कहा जा सकता। बायोलॉजिकल साइंसेज में 100% कुछ नहीं होता, इट चेंजेस फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो चीज़ें आपको सूट कर रही हो सकता आपको न करे, क्यों? आपका बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट थोड़ा अलग हो जाता है, हैबिट्स अलग हो जाती हैं, एक्सपीरियंसेस अलग हो जाते हैं। अब ये दूसरी नॉलेज है ये, लेकिन 80% वो काम करती रहेगी आपके अंदर। बैलेंस ऑफ द माइंड इज मेंटेन एंड रिफाइनमेंट ऑफ टैलेंट। एंड ब्रेन में क्या होता है कि हमारा आपका विजन चेंज, और लाभ क्या है इसमें? एनहांसमेंट ऑफ मेमोरी, मस्कुलर रिलैक्सेशन, ध्यान की बात बता रहे हैं आपको, मेंटल इक्विपोज, इनर कामनेस, इंक्रीज अवेयरनेस, cheerfulness all the time, disappearance of jealousy, lust and other vices, and behavioral modifications.
ये सब लाभ आपको इसी मेडिटेशन से मिलेगा। दैट्स वाई हमने आपसे कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि आप अगर अपनी पर्सनैलिटी अच्छा बनाना चाहते हैं, यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ, तो आप इसको ज़रूर करना। किसको? 15 मिनट का ध्यान करना, गायत्री मंत्र जप के साथ में। सूर्य का ध्यान करते जप करते रहना, ये लाभ होगा। ये हमने अपने जीवन में किया है, दैट्स वाई आई एम हियर एट दिस टाइम। ये गायत्री मंत्र का सूर्य का ध्यान और जप हम 62 से कर रहे हैं। व्हेन आई एंटर्ड इन द MBBS, बिफोर दैट फ्रॉम BSc पार्ट 1, और उसी का रिजल्ट ये इंट्यूशंस आ रहे हैं, बैलेंस ऑफ माइंड बना हुआ है। कितनी एडवर्स कंडीशन जीवन में आती है तो कोई बात नहीं, आई चली जाएगी, फाइट करेंगे उससे, ऐसी क्या बात है। लेकिन पावर आए तब तो कौन करेगा? हम ही आपको करना पड़ेगा। करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पर्सनालिटी बनती चली जाएगी। 9 साल पहले हमने वॉलंटरी जो रिटायरमेंट लिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ जॉइंट डायरेक्टर ऑफ रिटायरिंग शांतिकुंज, लिविंग इन शांतिकुंज, परम पूज्य गुरुदेव ने यही कहा था हमसे, बेटा 45 साल तुम्हारी उम्र कब हो जाएगी? 1988 में। हमने कहा पिताजी मैंने मन से पेंशन ले लिया है। तो फिर गुरुदेव जी ने कहा बेटा तुम कानपुर नहीं गए? हमने कहा आप भेजेंगे तो जाएंगे। 90 में पूज्य गुरुदेव ने शरीर छोड़ा, लखनऊ से हमारा ट्रांसफ़र कानपुर उर्सला हॉस्पिटल में हुआ और उसी से वहाँ प्रमोशन हुआ सीनियर कंसल्टेंट UHM कानपुर। अब पेंशन में मूव कर चुके थे, हमारी हिम्मत थोड़ी सी पेंशन लेने के लिए। लेकिन जब समझ में आ गई कि विचारों से बड़ी इस दुनिया में कोई दवा नहीं है, कोई विचार थॉट्स 75% काम करते हैं, मेडिसिन 25% काम करती है। जब हमारी समझ में बात आ गई तब गुरुदेव जी ने हिम्मत दिया। ये नहीं हमारी हिम्मत थी कि नौकरी के उसको छोड़ना, लेकिन दूरदर्शी बात को दिखा दिया, अंदर से हिम्मत दे दिया और सैंक्शन हो गई। हमारे क्लास फेलोज कहने लगे यार शर्मा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। हमने कहा पता नहीं हमारा हुआ कि तुम्हारा हुआ है। और अब सब मिलते हमसे आकर के कहते यार शर्मा तुम अच्छे हो, हम तो उसी में फंसे हुए हैं कीचड़ में। कहीं इनकम टैक्स का रेड हो रहा है, 3 हेड डिपार्टमेंट्स इसी मेडिकल कॉलेज में हैं हमारे। डॉक्टर RN द्विवेदी, प्रोफेसर त्रिपाठी हेड डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, सब हमारे पास आते रहते हैं। डॉक्टर वाजपेयी, ये सब हमारे क्लास वाले थे तो जूनियर थे 2 के। और सब कहते हैं शर्मा तुम अच्छे हो, गुरु कहते हैं कि गुरु तुम अच्छे हो, हम तो फंस गए हैं। अब ये तो बाद में समझ आई नहीं है, अब तो एज हो गई, हमारी 72 के हैं हम, अब वो भी ऐसे ही हैं। अब घर छोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया, अब सेवा क्या करेंगे भाई। या विवेकानंद समिति आप सब यंग एज में अगर आपने काम शुरू कर दिया बस फिर आप प्रॉफिटेबल, अदरवाइज नॉट। यू आर सो लकी, आप यंग एज में आपने उसको शुरू कर दिया है, आगे कुछ नहीं होने वाला है। पका बांस कभी मुड़ता है? कभी टूट तो जाएगा, मुड़ेगा नहीं वो, क्योंकि जो हैबिट्स पड़ गई वो जाएंगी कहाँ भाई। थोड़ी बहुत आदमी अच्छा काम करने लगता है तो जीवन अच्छा होने लगता है। लर्निंग रिटेंशन, उसी बात को आइए। बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर जप एंड ध्यान, द सेम थिंग, मेमोरी इंक्रीज करने लगती, टेंशन कम हो जाता है। आवर ब्रेन वर्क्स बाय 3 थिंग्स, करंट्स, केमिकल्स एंड मिस्टीरियस ऑसिलेशंस। मिस्टीरियस ऑसिलेशंस क्या हैं ये? एक तो इन्वायरमेंट में चल रहा है, एक हमारे अंदर मतलब थॉट्स, इससे हमारा आपका ब्रेन काम करता रहता है हमेशा। प्राणायाम, रिसाइटेशन ऑफ गायत्री मंत्र एंड पॉजिटिव थॉट्स इंक्रीजेज द करंट ऑफ आवर बॉडी, कि बिकॉज आवर करंट सेल्फ जनरेटिंग करंट है ब्रेन का, वो इन्हीं से इंक्रीज करता है वो। एवरी फीलिंग एंड थॉट फॉलोज ए केमिकल एंड एवरी केमिकल फॉलोज ए थॉट। थॉट एंड फीलिंग्स इनसाइड एंड आउटसाइड इफेक्ट द ब्रेन एक्टिविटी। इसमें माइंड रखना हमेशा, हमारी ब्रेन एक्टिविटी जो सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस है वो हमारी एक्टिविटी से गवर्न हो रहा हो, इसलिए थोड़ा सोचने के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, हम पॉजिटिव हैं कि निगेटिव चल रहे हैं। द कॉग्निशन, दैट इज द थॉट, अवेयरनेस इज द फीलिंग, अफेक्ट इज द फीलिंग एंड कॉग्निशन इज द एक्शन। द फीलिंग, थॉट एंड एक्शन दे मेंटेन द मेंटल इक्विलिब्रियम। भावना, विचार और कर्म, ये गड़बड़ हो गया, मेंटल डिजीज हो गई। ध्यान और जप करने से, स्वाध्याय करने से ये बैलेंस मेंटेन रहता है और हम मेंटली नॉर्मल बने रहते हैं। संयम क्या करेंगे? समय का संयम, विचार का संयम, इंद्रिय संयम और अर्थ संयम। समय मतलब, संयम मतलब बचाना और इस्तेमाल करना। टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल पर स्ट्रिक्टली काम करिए, यही समय संयम है। और कुछ समय संयम थोड़ी है। विचार संयम क्या है? कोई विचार मन में ऐसा आ रहा है फालतू में, हम पीछे बात सोच रहे हैं, पास्ट को याद कर रहे हैं, फ्यूचर की कल्पना कर रहे हैं, प्रेजेंट को भूल चुके हैं,
अरे भाई पास्ट को भूल जाइए, फ्यूचर की कल्पना मत करिए, प्लानिंग करिए, वर्तमान में रहिए। ये विचारों का संयम, और कुछ विचार से समय का संयम, विचार का संयम थोड़ी है ये। आदमी वर्तमान में तो रहते ही नहीं, कार चला रहा है और सोच न जाने कहाँ रहा, फिर एक्सीडेंट हो जा रहा है। अभी हम नैनीताल यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था से 3 साल पहले, तो वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर साहब थे, उन्हीं घर रुके थे, चाय पानी रखे थे। तो दाढ़ी बना, चाय हम भी पी रहे थे, वो भी पी रहे थे और दाढ़ी बना रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो जो दाढ़ी वाला पानी होता है ना, साबुन का, सोप का, उसको उन्होंने पी लिया। अरे हमने कहा प्रोफेसर साहब ये क्या कर रहे हो आप? उन्होंने कहा चाय पी रहे हैं। हमने कहा चाय थोड़ी पिया आपने। अरे उन्होंने कहा डॉक्टर साहब क्या बताएं, हमारा लड़का लखनऊ में है और कंपटीशन में बैठ रहा है, हमारा पूरा मन उसके ऊपर चला है, पता नहीं आए कि ना आए, हम क्या करेंगे? और हमने कहा आप तो इतने बड़े, क्या बताएं अब आपको, अब आप अगर वर्तमान में रहेंगे नहीं तो ऐसे ही होगा। ये हमेशा मन को वर्तमान में रखना चाहिए। स्टोरी तो सुनी जाती थी, अपनी आँख से देखा हमने इसको कि कैसे आदमी का मन उसको कंट्रोल ही नहीं करता उसको। आप उसको वर्तमान में रखिए, आगे बढ़, इसी का नाम है संयम। और संयम को छोड़िए। सेवा किसकी करते हैं? शरीर की, परिवार, समाज, धर्म और संस्कृति की सेवा जो आप कर रहे हैं। ये शरीर की सेवा क्या है? एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, बैलेंस डाइट लेना, ये शरीर की सेवा कर रहे हैं, किसी और की थोड़ी कर रहे हैं। हम अपनी सेवा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं। दूसरे से क्या लेना देना उससे? और दूसरे की मदद हम जरूर करेंगे आपकी, जब हम फिट रहेंगे तो। ये तो है समाज की सेवा। अब बच्चों को कौन रास्ता दिखाएगा, आप बताइए? तो कैसे गोल फिक्स करेंगे अपने? अरे भाई आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, आप एक्सपीरियंस दूसरों को दीजिए ना। ये जब हम डॉक्टर्स की मीटिंग लेते हैं तो यही तो कहते हैं हम, ये थोड़ी फिजियोलॉजी मेडिसिन में पढ़ाया गया था। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो हम डॉक्टर से क्या बात करते हैं? उनसे हम उनकी भाषा में बात करते हैं। भाई तुम्हारी इंस्टीट्यूशन नहीं आएगा तो प्रोग्नोस्टिक वैल्यू का जजमेंट कैसे करोगे तुम? और कोई फिजिशियन अगर वो प्रोग्नोस्टिक वैल्यू को जज नहीं कर सकता, ही कैन नेवर बी गुड फिजिशियन। फेल कर जाएगा लाइफ में अपने। हो कितने हमने साथ वालों को, सीनियर्स को देखा, इतनी डिग्रियां लिए हैं लेकिन वो डिफेम हो गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इंट्यूशन आ ही नहीं रहा है। ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, मशीन की तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अब फेल हो जा रहे हैं। लेकिन वो इंट्यूशन आएगा कहाँ से? इसी ध्यान और स्वाध्याय से आएगा। और कोई रास्ता नहीं है, वो ये स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट है ये। और जो कर रहा है उसको आगे बढ़ रहा है, नहीं करेगा तो पीछे चला जाएगा। वो तो करे और देखे, उसमें कुछ बताना क्या है, करना क्या है उसमें। 3 D और 3 P आप याद रखना। ड्रीम्स हमेशा देखना, ये इंट्यूशन है ये। एंड ऑलवेज बी डेडिकेटेड फॉर दैट ड्रीम इंट्यूशन। आप प्लान कर रहे हैं ना कहीं आगे काम करने की, ये ड्रीम है ये। लेकिन ये ड्रीम सफल कब होगा? जब आप फुल्ली डेडिकेटेड होंगे उसके लिए, तब। और तीसरा, डिसिप्लिन में रहिएगा। आउटर डिसिप्लिन या इनर डिसिप्लिन। इनर डिसिप्लिन क्या है? नियम का पालन करना, कोई हमसे कहे या न कहे, लेकिन हमको करना है। अब लाल बत्ती है, लोग क्या देखते हैं? अभी अपनी घटना बता रहे हैं। 4-5 साल हो गया, दिल्ली में एयरपोर्ट से किसी को सी ऑफ करके आ रहे थे, रात में 12:30 बजा था। तो हमारे ड्राइवर साहब, चालक ने देखा कि कोई सिपाही तो है नहीं, तो वो लाल बत्ती के आगे चले आए। गाड़ी रोक देनी चाहिए थी। पुलिस वालों ने, दिल्ली में आप जानते हैं, पीछा कर लिया और पकड़ लिया गाड़ी। आए, उन्होंने कहा अरे बाबा जी लाल बत्ती नहीं दिखाई पड़ी? क्योंकि पीला कपड़ा पहने था चालक हमारा, तो तुमको गाड़ी रोकना चाहिए कि नहीं? उसने कहा साहब रोकना तो चाहिए था, अंतरात्मा माया तो था रोकना चाहिए, लेकिन आप नहीं थे इसलिए हम भाग गए। तो ये क्या हुआ? इनर डिसिप्लिन। उन्होंने कहा नहीं, तुम तो भाई शांति, वो जानता शांति कुंज, और कहा तुम तो शांति कुंज से हो, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो ना। इसको कहते हैं आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन, आप अपने स्वतः के अनुशासन में रहिए ना। ये डिसिप्लिन दूसरा कौन कब तक आपको बताएगा? अगर ये चीज़ों को फॉलो करने लगेंगे तो क्या कहना है, सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है। और तीसरी 3 चीज़ों की याद रखिएगा जो आपको मिल जाएगी इसी ध्यान से, स्वाध्याय से, पर्सनालिटी डेवलप करने से। प्योरिटी, पेशेंस एंड परसिवरेंस। और ये क्वालिटी 6 आपके अंदर आ गई
सक्सेस आपके पीछे पीछे चलती रहेगी। और फिर तो अंत में एक बात बता करके कि आप शांति कुंज जरूर आना। हमको 28वां वर्ष शांति कुंज में रहते हो गया है। मकान तो लखनऊ में है, 28 साल से लखनऊ छोटा लड़का रहता है, मिसेज और हम दोनों जने वहीं रह रहे हैं। जब कभी आप आना, आप हमको बताना, हम सब सेवक हैं वहाँ। परम पूज्य गुरुदेव ने 1982 में हमसे कहा था, जब अनुष्ठान कर रहे थे, सुल्तानपुर में सुपेंड थे, 40 दिन छुट्टी लेकर गए थे। गुरुदेव ने हमसे कहा, बेटा सेवा तुम लोग करना और दूंगा मैं। हमने उसी को पकड़ लिया। आप आते हैं, आपसे प्रेम से बात करना, आपको रुकने की व्यवस्था करना जिससे आपका मन अच्छा बना रहे, बस। वो ऐसा एनवायरनमेंट है शांति कुंज, एक्स्ट्रा सेंसरी वाइब्रेशंस आर सो रिच। आप किसी से बात, आपको एनवायरनमेंट ही पढ़ा देगा और टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको मैसेज मिलता रहेगा। आप एक अपनी डायरी रखना और उसी डायरी में सारी बातों को नोट कर लेना और आप उसकी प्रैक्टिस करना और चले आइएगा। आप देखिएगा आपका फ्यूचर कितना अच्छा होता है। आपका फ्यूचर अच्छा हो। इन्हीं शब्दों के साथ बात को समाप्त करेंगे, लेकिन अंत में करना क्या है 2 लाइन बता दें। आपको आज से ये 5 काम करने हैं, शुरू कर दीजिए इसको। पहला है आत्मबोध की साधना। जब आप सुबह सोकर उठिएगा तो आप 6 बार गहरी सांस लीजिएगा, 5-6 बार डीप ब्रीदिंग करिए, उगते हुए सूर्य की कल्पना करिएगा, 12 बार गायत्री मंत्र कह लीजिए, कमर सीधी करके अपने चारपाई पर बैठ जाइएगा, 12 बार गायत्री मंत्र, और फिर प्रार्थना करिए, ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय अस्तोमा सद्गमय मृत्यु और मामृतम गमय। 1 मिनट चुपचाप बैठे रहिएगा आप, माइंड काम एंड क्वाइट हो जाएगा, इंट्यूशंस अंदर में डिवाइन आने लगेंगे। फिर दोनों हथेलियों को रगड़िएगा, चेहरे पर लगाइएगा और चारपाई छोड़ दीजिएगा इसी 5 मिनट के अंदर। क्योंकि हर दिन को नया जन्म मानना चाहिए, एक दिन का पूर्ण सदुपयोग करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बेटा ये पहली साधना हर व्यक्ति को करनी है, हम भी करते हैं और आपको भी करना है, इज ए की ऑफ सक्सेस। दूसरा उपासना, जो हम उपासना मतलब समीप बैठना, गुणों को धारण करना। जो हम आप गायत्री मंत्र के गुणों को धारण कर रहे हैं अपने अंदर ध्यान के माध्यम से, उसी का नाम है उपासना। जो हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं समय का, इंद्रियों का, विचारों का, उसी का नाम है साधना। आराधना, सेवा हम बता चुके हैं। रात में सोते समय जब आप सोइएगा तो तत्वबोध की साधना करिएगा। व्हाट इज़ दैट? रियलाइजेशन द सेल्फ। क्या मतलब हुआ कि जब आप सोने लगिए, अगर मन में कोई तनाव है किसी भी तरीके का है, कोई गिल्टी फील कर रहे हैं, तो माइंड दिस थिंग, कभी साउंड स्लीप नहीं आएगी। नींद कभी भीड़ में नहीं आती। अगर विचारों का क्राउड है मन के अंदर, कभी नींद नहीं आएगी। क्राउड नहीं होना चाहिए। और क्राउड तब हटेगा विचारों का जब हम, कोई गलती अगर हमसे हुई, भगवान अंदर बैठा हुआ है, अपने मन से कहिएगा, अपॉलॉजी मांगिएगा, क्षमा करिएगा। टू एरर इज़ ह्यूमन। आज हमने टाइम वेस्ट किया, आज हमारे विचार नेगेटिव आ गए, आप क्षमा करिएगा, कल हम ऐसा नहीं करेंगे। माफ़ी मांगते हुए सो जाइए, गायत्री मंत्र का 1 बार जप करके। और ध्यान क्या करेंगे? दीपक का ध्यान, जिस रूप में हम आप तत्वमसी, यही तो है ना, तत्व लाइट। हीट लाइटिंग में तो बदल जाती है। जो गर्मी हमारी आपके अंदर शरीर की है, वही गर्मी तो जीवन है। हीट निकल गई, ठंडे हो गए कि नहीं हो गए? ठंडे हो गए तो राम नाम तत्सत हो गया। और हीट किस रूप में है? लाइट के रूप में है। हमारे आपके हृदय के अंदर जो पेसमेकर है, अभी उसका जब फोटो लीजिए, देखिए आप कैसे क्लिक बल्ब ऐसे जलता रहता हो। अब तो MRI में जाइए ना, सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही है अब। तभी तो ये सब बातें आ गई हैं जब से ये फिज़िक्स इतनी एडवांस हो गई, क्योंकि सारी साइंस तो मिली हुई है। जितनी फिज़िक्स एडवांस होगी, केमिस्ट्री एडवांस होगी, उतनी बायोलॉजिकल साइंसेस एडवांस हो जाएंगी और चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब आज सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि क्या चीज़ है ये। बस यहीं प्रकाश का ध्यान करते हुए सो जाइए। अब अपने मन से क्या कहिएगा? अब शरीर हमारा एक मकान है, हम इस मकान में आराम कर रहे हैं। बस आज से ही भावना आप कहिएगा। जैसे हम आप इस हॉल में बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा हॉल थोड़ी है, हॉल में बैठे हैं, ये सच्चाई है, हॉल में बैठे हैं, ये हॉल नहीं है हम आप। ऐसे हम स्पिरिट हैं, हम अमर हैं। ये कल्पना करिए, अभी हमने जाना नहीं, कल्पना कर रहे हैं।
लेकिन शरीर रूपी मकान में हम बैठे हुए हैं, हमारा मन सोने जा रहा, हमारी बुद्धि सोने जा रही है और हम विश्राम करने जा रहे हैं। बस ये भावना कहते हुए एक बार गायत्री मंत्र कह के सो जाइएगा। सुबह जब आप उठेंगे योर ब्रेन विल फुल्ली रिवाइटलाइज्ड। बस अगला जीवन शुरू। एक एक दिन एक एक बूंद का कर्म इकट्ठा होता जाएगा और भविष्य इतना उज्जवल हो जाएगा कि दैट विल गिव द फुल सेटिस्फेक्शन इन योर लाइफ, फुल सेटिस्फेक्शन। पैसा कभी सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। सेटिस्फेक्शन जब भी आएगा इन्हीं को फॉलो करने से आएगा, अदरवाइज नॉट। पैसा आपको डिससेटिस्फाई करेगा, लस्ट आपको डिससेटिस्फाई करेगा और इस सद्विचार आपको सेटिस्फाई करेंगे, आपको परफेक्ट बनाएंगे। यही जीवन का लक्ष्य है कि जब हम यात्रा पूरी करें उसके पहले हमको आत्मज्ञान होना चाहिए। हु एम आई, हमको अपने पावर्स को रियलाइज़ कर लेना चाहिए और सारी दुनिया को अपना मानना चाहिए। आत्म सर्वभूतेषु, जो प्राण हमारे अंदर है वो प्राण आपके अंदर है, जो भावना हमारे अंदर वो भावना आपके अंदर है। ये हृदय से जब बात आ जाती है तो बस यही जीवन का लक्ष्य है। इसी को आत्म विस्तार कहते हैं, इसी को प्रेम करना कहते हैं और प्रेम ही भगवान है। यही तो ईसा मसीह ने कहा, लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। यही तो उपनिषद ने कहा है, रसो वैसा। परमात्मा आनंद के रूप में है, प्रेम के रूप में है, पवित्रता के रूप में, आत्मीयता के रूप में है, वही परमात्मा है। अगर ये भाव पैदा हो गया तो हमारा आपका जीवन सफल हो गया। आपका जीवन सफल हो, आपका भविष्य अच्छा हो। पूज्य गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। हाँ।